Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Shore Model School for online English class for class 4th. Okay, this is your book of English, Better English Literacy Skills, and it is written by Maria Relly, as you can see her name here. And this book is full of so many exciting activities, and you can learn a lot from this book. So boys, today we are going to do few of the exercises of unit 7. We had read unit 7 and now we are going to do the exercises of the same unit. The name of the unit was Flintstones, and today we will do exercise A, B and C. Your page number is 37 and unit number is 7. Okay, so if you remember, we had read about this cartoon show and about the Stone Age in this unit, and we also did few of the question answers, then true false, and today we are going to do few exciting activities, right? So the first thing which I'm showing you, this is the list of words opposite. The first exercise of page 37 is based on words opposite. Boys, if you remember, so we usually do these exercises or these words opposite in our classes. वर्ड्स अपोजिट का दूसरा नाम जो है वो एंटोनिम्स भी होता है, राइट? इसको हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं. सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड, एंड एंटोनिम्स मीन्स होता है अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड. ठीक है, सो एंटोनिम इज अ वर्ड दैट हैज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड. This is the definition of antonyms. So this is the picture, as you can see in this picture. Up, down, down, up. Closed, open, open, closed. Then happy, sad, sad, happy. Then cold, hot, hot, cold. Then fast, slow, slow, fast. Big, small, small, big. So these are few pictures which I want to show you कि ताकि आपको clear हो जाए कि words opposite हम करते कैसे हैं. So I have shown you few of the pictures, but these are not included in that unit, page 37. These are the words. Now comprehension, find the words in the list that mean the opposite of those in the table. हमारे पास ये जो words given हैं, इन्हीं के opposite are given here, right? These are given here. So we are going to do search that word, the correct word which is the opposite of this word, and then we are going to write in these empty blanks. हम यहाँ पे इनको लिखेंगे in empty spaces में, right? Now first I'm just going to read these words, and afterwards we are going to solve it. Okay, the first word is first. The first word is first, and second one is popular, then lovely, then entrance, then question, then true, then strong, then absent, then teach, and the last one is junior. So the first means pehla, popular means मशहूर, lovely means प्यारा, entrance means जो अंदर जाने का रास्ता होता है, क्वेश्चन तो आपको सबको पता है किसको बोलते हैं, सवाल को. देन ट्रू मीन्स सच, ठीक. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत. एब्सेंट मीन्स गैर हाजिर. टीच मीन्स पढ़ाना, एंड जूनियर मीन्स जो जिसको मैं अब उर्दू में देयर इज़ एनी स्पेसिफिक वर्ड कम्स इन माई माइंड को जो मैं इसके लिए बोलूँ. सो जैसे आप हमारे यहाँ पे जूनियर सेक्शंस हैं, सीनियर सेक्शंस हैं हमारे स्कूल में, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सर्च द वर्ड हेयर. हम यहाँ से वर्ड सर्च करेंगे और फिर उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे जो प्रॉपर वर्ड होगा. नाउ द सी द लिस्ट हेयर. अनपॉपुलर, आंसर, फॉल्स, लर्न, हॉरिबल, प्रेजेंट, लास्ट, वीक, सीनियर एंड एग्जिट. अनपॉपुलर का मतलब यही होगा, पॉपुलर का मतलब मशहूर, तो अनपॉपुलर का मतलब क्या होगा, जो गैर मारूफ हो, जो मशहूर ना हो. आंसर जवाब, फॉल्स गलत, लर्न सीखना, हॉरिबल खौफनाक, प्रेजेंट हाजिर, लास्ट आखिरी, वीक कमज़ोर, सीनियर जो थोड़ा दर्जे में बड़ा हो, ठीक है. फिर एग्जिट बाहर निकलने का रास्ता. आप लोगों ने यूजुअली हॉल्स में ये देखा होगा, आप लोग जाते हैं किसी न किसी फंक्शन पे तो वहाँ पे ये हॉल के दरवाज़ों के बाहर या एयरपोर्ट पे देखा होगा आपने, एग्जिट का वर्ड लिखा हुआ था. एग्जिट का मतलब होता है वो रास्ता जहाँ से आप बाहर आते हो. नाउ बॉयज विल प्लेस द वर्ड्स हेयर. अब यहाँ पे हमारे पास अच्छी बात क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी उनके ऑपोजिट वर्ड्स गिवन हैं हेयर. हमने जस्ट उनको सिलेक्ट करना है,
पर हमने सोचना है कि विच वर्ड इज सूटेबल हेयर, इसके साथ जो है वो ऑपोजिट कौन सा जाएगा। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि ऑपोजिट क्या होते हैं, द वर्ड दैट हैज़ द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अनदर वर्ड। अब इसके साथ जो मैं वर्ड लिखूंगी वो इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा। नाउ see this slide. I have solved here. Now see the word first, and what is the opposite of this? Last. L-A-S-T, last. First पहला, last आखिरी. And second word popular, मशहूर. He is a popular singer. तो पॉपुलर का मतलब होता है जो मशहूर हो, जिसे सब लोग जानते हो, जो मारूफ हो. ठीक है. Now see unpopular, जो गैर मारूफ हो, जो ज़्यादा मशहूर हो, जिसे लोग ना जानते हों. क्लियर. तो कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं वो जब उनका ऑपोजिट हम बनाते हैं तो उसके साथ हम लगा देते हैं, सफिक्स लगा देते हैं या प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो वो उनका जो है ऑपोजिट बन जाता है. एज आप देखें यहाँ पे यू एन का हमने 2 लेटर्स लगाए और इसका ऑपोजिट हमने बना लिया. इसी वर्ड के साथ हमने जब स्टार्ट में यू एन ऐड किया तो इसी वर्ड का यहाँ पे हमारे पास एंटोनिम्स आ गया. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू वर्ड नंबर 3, दैट इज़ लवली. लवली का मतलब होता है प्यारा. द वेदर इज़ वेरी लवली, दैट चाइल्ड इज़ वेरी लवली. तो हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं. अब देखें इसका ऑपोजिट क्या होता है, हॉरिबल, खौफनाक. HORRIBLE, हॉरिबल, हॉरिबल. Now moving on to the next word number 4, that is entrance. Entrance, अंदर जाने का रास्ता. अब हम टेबल से अगर वर्ड सेलेक्ट करेंगे, लेट मी शो यू द टेबल. देखें यहाँ पे द वर्ड्स आर गिवन हियर, द वर्ड्स आर गिवन हियर. तो हमारे पास जो एंट्रेंस का ऑपोजिट आएगा, इफ़ यू सी दिस इज़ द लास्ट इन दिस टेबल. इस टेबल में ये लास्ट वर्ड है, तो मैंने इसको यहाँ पे टाइप कर दिया EXIT, एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता. EXIT, exit. Is it done, boys? Have you written on your books? Okay, you're supposed to write on your books. Now moving on to number 5. Number 5 is question. Question. See here, question. अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे which word can be the opposite of this word. अब देखिए आप, yes, answer, answer. Question सवाल, answer mean जवाब. So we are going to write here answer. तो आप अपनी बुक पे इस ब्लैंक में नंबर 5 ब्लैंक में क्या लिखोगे, ANSWER, answer, answer. Clear? Now let's check the another word. Yes, the another word is true, true. Now see here again, इसी को हम सर्च करेंगे कि हमारे पास इसका ऑपोजिट कौन सा वर्ड आ रहा है. सो विच वन इज ट्रू. और आप लोगों के अक्सर पेपर में भी ये क्वेश्चन होता है और बुक में भी हम करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स. येस, यू आर राइट, ट्रू एंड फॉल्स. द ऑपोजिट हम इसका क्या लिखेंगे, फॉल्स. दिस इज हियर TRUE, ट्रू, एंड FALSE, फॉल्स. FALSE, फॉल्स. Now this number 7th word is strong. STRONG, strong. Now see your books. अपनी बुक को आप लोग देखो और उसी टेबल में सर्च करो, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है. स्ट्रॉन्ग, मजबूत. ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन. क्या ऑपोजिट होगा, वीक. WEAK, वीक. वीक मीन्स कमज़ोर, नातमाम. ठीक है, वीक मीन्स कमज़ोर. ही इज़ टू वीक टू वॉक. इट मीन्स कि इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता. ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ. हम यूज़ करते हैं ना ये वर्ड्स. सो स्ट्रॉन्ग, वीक. एंड बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द स्पेलिंग ऑफ वीक, जिसको यूजुअली आप लोग गलत लिख लेते हो. इसकी स्पेलिंग WEAK, वीक. क्लियर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एब्सेंट, गैर हाजिर. जैसे स्कूल में कोई बच्चा एब्सेंट होता है, जब उसका नेम कॉल आउट होता है तो आप बोलते हो ना, मैडम ही इज़ एब्सेंट. सो द एब्सेंट मीन्स गैर हाजिर, जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं होता. और जो बच्चे इस क्लास में आए होते हैं, तो व्हेन द टीचर इज टेकिंग द रोल कॉल, तो क्या बोलते हैं आप लोग, प्रेजेंट. मैम प्रेजेंट. तो एब्सेंट गैर हाजिर, प्रेजेंट मीन्स हाजिर. PRESENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट. क्लियर. ओके,
Number 9 is teach. Again this is relevant to our school. Teach पढ़ाना, हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, टीच. आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, लर्न, सीखना. लर्न का मतलब होता है सीखना. LEARN, लर्न, सीखना, राइट, सीखना. टीच पढ़ाना, लर्न सीखना. Okay, now moving on to the next word, that is junior. Junior, JUNIOR, junior. क्या ऑपोजिट होगा, एग्जैक्टली सीनियर. SENIOR, senior. So there were only 10 words in this table. So I hope आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे, अपनी बुक्स पे कंप्लीट कर लिया होगा. ठीक है, अगर नहीं किया तो अभी आप इसको अपनी बुक्स पे पेज 37 एक्सरसाइज ए आप कंप्लीट कर लो विद द हेल्प ऑफ दीज स्लाइड्स. Now we are moving on to the next exercise, but before moving on to exercise B, let me make you clear about the rhyming words, because that exercise is based on the rhyming words, right? अब मैं आपको बताऊँ rhyming words क्या होते हैं. Two words having the same vowel sound and end with the same consonant sound. अब ऐसे words जिनकी vowel sound भी same हो और उनकी consonant sound जो है वो end हो रही है same consonant पे. अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, इस ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, हम इसको शॉर्ट में जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ईजी लिखते हैं. नाउ सी, स्वीट, ईट. सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स, क्योंकि देखें टी एंड टी हेयर, ये देखें इनकी जो है राइम बन रही है. देन मे, ट्रे, मे ट्रे. देन ट्राई, क्राई. इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे प्ले, डे, ओबे, जिनकी वॉवल साउंड सेम होती है. और ये जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होते हैं, जी बिल्कुल पोएम्स में. हम जब कोई पोएम पढ़ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा उनकी जो राइमिंग स्कीम होती है किसी स्टैंजा की, तो हमें ये वहाँ पे इसकी समझ आ रही होती है कि यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स यूज़ हुए हैं. ऑल्दो इस एक्सरसाइज में हमें राइमिंग हमें जो दिए गए हैं वो सेंटेंसेस वो किसी स्टैंजा से नहीं लिए गए हैं, सिंपल सेंटेंसेस है, लेकिन हम इसमें राइमिंग वर्ड्स को ऐड करना है. अगेन राइमिंग वर्ड्स, व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स? वर्ड्स दैट राइम हैव द सेम लास्ट साउंड. बैट एंड कैट, राइम, इनकी देखें राइम बन रही है. देन साइंड, साइड एंड हाइड, अगेन इनकी राइम बन रही है. देन हिट एंड सिट. सो आई होप आपको राइमिंग वर्ड की समझ आ गई होगी. तो अब मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ. ओके, now see exercise B on your book. I have taken the picture from that book, from your book. तो आप अपनी बुक पे इस वक्त देखो पेज 37, एक्सरसाइज B. We always meet at the end of the. अब देखिए हमें यहाँ पे लगाना है कोई भी राइमिंग वर्ड और उसको हमने मैच करना है इस मीट के साथ. ठीक है, इस मीट का हमने राइम यहाँ पे लगाना है जो वर्ड हम ऐड करेंगे. सेकेंड है the boy didn't know how to. यस, द बॉय डिडंट नो. अब इसका जो हम राइमिंग वर्ड बनाएंगे स्नो के साथ का बनाएंगे. ठीक है, स्नो के साथ का हमने यहाँ पे राइमिंग वर्ड ऐड करना है. ओके, नंबर 3 इज द ओक ट्री स्टम्प लुक लाइक अ. अब हमने यहाँ पे ऐड करना है. जब मैं इसको साइड बाय साइड करूँगी तो देन आई विल शो यू द स्लाइड एंड द पिक्चर. अच्छा, स्टम्प कहते हैं जब हम दरख्त को काट लेते हैं ना, किसी दरख्त को जैसे काटा जाता है. वैसे दरख्त काटने तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इसकी वजह से जो है पोल्यूट हो रहा है, पोल्यूटेड है. अगर हम दरख्तों को काट रहे हैं, दरख्त हमें लगाने चाहिए. ठीक है, तो आप मैं आपको बताती हूँ, स्टम्प उसको बोलते हैं जब दरख्त काट दिया जाता है तो उसका वो जो तना सा रह जाता है उसको स्टम्प बोलते हैं. तो मैं आपको पिक्चर भी इसकी बताऊँगी. राइट नाउ, फोर्थ, शी बॉट अ न्यू गाउन इन अ शॉप इन द. अब यहाँ पे हमने गाउन के साथ का कोई भी राइमिंग वर्ड ऐड करना है. ओके, नाउ द लास्ट वन, आई लव द थ्रिल ऑफ स्केटिंग. अब यहाँ पे हमने वर्ड ऐड करना है, लेकिन इस पर जब मैं सोचती रही तो मुझे लगा कि स्केटिंग के साथ का ही हमें वर्ड लगाना चाहिए. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सॉल्व. ओके, नाउ सी दिस, वी ऑलवेज मीट एट द एंड ऑफ द वीक. अब देखिए मीट, इसका कलर अलग इसीलिए है कि इसके साथ राइमिंग वर्ड बन रहा है. ठीक है, एंड एट द एंड full stop is there. And boys, you people usually forgot to place the full stop at the end of the sentence. तो make sure कि जब आपका sentence complete हो जाता है तो आप full stop लगा रहे हो. full stop इस बात को indicate करता है कि यहाँ पे बात ख़त्म हो गई और इसके बाद next sentence है.
तो इस बात का प्लीज़ आप लोग ख्याल रखा करो कि इनिशियल लेटर ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी कैपिटल एंड एट द एंड द फुल स्टॉप मस्ट बी देयर। अब आप इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ो, आप अपनी बुक पे देखो। वी ऑलवेज मीट एट द एंड ऑफ द वीक। ये देखें इनकी वोवल साउंड डबल ई देन डबल ई, तो ये इसका राइमिंग वर्ड बन रहा है। जैसे ये फ्रेंड्स हैं, ये एक वीक के एंड पे मिलती हैं, ठीक है। तो वी ऑलवेज मीट एट द एंड ऑफ द वीक। ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। आप इसको अपनी बुक पे लिख लो, पेज 37, एक्सरसाइज बी। इसके बाद मैं आती हूँ सेंटेंस नंबर 2 पे। द बॉय डिडंट नो, the boy didn't know how to row. Now you can see these all kids are standing in a row, but that boy, he is out of the row. वो क्यों में नहीं है, वो उस लाइन में नहीं है। So the boy didn't know how to row. So no row, no row. ये हमारा rhyming word इसके साथ बन रहा है। The boy didn't know how to row and then full stop. Okay. The boy didn't know how to row, then full stop, R-O-W, row. Have you done, boys? Okay, मैं अब next पे जाऊँ। Should I proceed now? The boy didn't know how to row. इन जो है ना rhyming words का कलर मैंने इसलिए अलग रखा है ताकि आपको इसकी समझ आए। Okay, now this is stump. You can see stump. ये देखें दरख्त है और ऊपर से कटा हुआ है, और इसको हम इस जो इसका दरख्त रह गया है नीचे ज़मीन के साथ, इसको स्टम्प बोलते हैं, ठीक है। नाउ सी, द ओल्ड ट्री स्टम्प लुक लाइक अ हम वैसे वो ऊंट के जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, कोहान उसकी होती है, उसको हम बोलते हैं। इसके अलावा ज़मीन पे अगर छोटी सी कोई पहाड़ी हो, बिल्कुल छोटी सी ना हिल टाइप, जैसे स्मॉल हिल, उसको भी हम बोलते हैं, राइट। तो द ओल्ड ट्री, हम अपनी ज़मीन के ऊपर ये दरख्त है, कटा हुआ है, इट लुक लाइक अ हम, तो इसको हम उसी सेंस में लेंगे, छोटी सी पहाड़ी के सेंस में, राइट। द ओल्ड ट्री स्टम्प लुक्ड लाइक अ हम, STUMP स्टम्प एंड HUMP हम, इनकी भी आपस में राइमिंग बन रही है। क्लियर बॉयज? हैव यू रिटन? ओके, नाउ मूव ऑन टू सेंटेंस नंबर 4। नाउ दिस इज़ अ गाउन, जो आपने देखा होगा और टीचर्स स्कूल में पहनती हैं ये गाउन, फिर लॉयर्स भी पहनते हैं। तो ये देखिए, शी बॉट अ न्यू गाउन इन अ शॉप इन द टाउन। गाउन टाउन, गाउन टाउन, राइम बन रही है ना, गाउन टाउन। सिर्फ का देखें, यहाँ पे जी है और यहाँ पे टी है, इनके इनिशियल लेटर जो हैं उनको चेंज करने से न्यू वर्ड भी बन रहे हैं और हमारा राइमिंग वर्ड भी कंप्लीट हो रहा है। So she bought a new gown in a shop in the town. TOWN, town. TOWN, town. Okay. Now see the next pic, and this is the last sentence. I love the thrill of skating, racing. Skating. ये जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है बॉयज़, इसी को स्केटिंग बोला जाता है। पाँव में एक स्पेशल किस्म के बूट होते हैं जो पहने जाते हैं और उनकी हेल्प से स्केटिंग होती है, और बहुत सारी गेम्स जो हैं वो इस पर बेस्ड होती हैं। तो ये रेस हो रही है, स्केटिंग की रेस हो रही है। तो आई लव द थ्रिल ऑफ स्केटिंग, रेसिंग, स्केटिंग, रेसिंग। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप यू माइट हैव रिटन ऑन योर बुक्स। अगर अभी तक भी नहीं लिखा तो प्लीज़ राइट ऑन योर बुक, पेज 37 एंड एक्सरसाइज बी इज देयर। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज सी की तरफ। एक्सरसाइज सी हमारे पास है वर्ड स्ट्रक्चर, राइट वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर। नाउ दिस इज अगेन अ पिक्चर फ्रॉम योर बुक। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि क्या करें, राइट वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर्स। अब कौन से लेटर्स? यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग जो है दैट है FL। तो हमने यहाँ पे जो एम्प्टी हमारे पास ब्लॉक्स हैं, इनमें हमने सारे वो वर्ड्स लिखने हैं जो FL से स्टार्ट होंगे, ठीक है। वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या रखना है, हमने अपने माइंड में ये रखना है कि उनका स्टार्टिंग 2 लेटर्स जो हैं वो FL होंगे, ठीक है। सेकंड ब्लॉक में हमने वो वाले सारे लेटर्स लिखने हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं DR से। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? DR से, यस। तो इन सारे ब्लॉक्स में हम वो लेटर लिखेंगे जो DR से।
एक एक ब्लॉक में एक एक एग्जाम्पलरी जो वर्ड है वो ऑलरेडी गिवन है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आपकी बुक पे भी गिवन है FLOW, तो FL यहाँ पे भी क्या है FL। देन DR, यहाँ पे एग्जाम्पलरी जो हमारे पास वर्ड है वो है ड्रिंक, तो DRINK ड्रिंक। ओके, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरह के वर्ड्स लिखने हैं। देन थर्ड हमारे पास जो वर्ड है वो है SM। एग्जाम्पलरी वर्ड हमें दिया गया है SMALL स्मॉल, आपकी बुक पे गिवन है। अगर आप अपनी बुक को देखो वहाँ पे ये वर्ड्स आपको गिवन है SMALL स्मॉल। फिर हमारे पास ये जो एम्प्टी ब्लॉक्स है इसमें हम लोग खुद वर्ड्स लिखेंगे। द नेक्स्ट वन इज STR, और यहाँ पे हमें एक ही वर्ड दिया गया STRAP स्ट्रैप, ये एग्जाम्पलरी वर्ड है। अब आए लास्ट वन, फिफ्थ जो हमें इनिशियल लेटर दिए गए हैं वो हैं WH, और एग्जाम्पलरी वर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है WHICH। अब इन एम्प्टी ब्लॉक्स में हमने वो वर्ड लिखने हैं जिनका इनिशियल लेटर या तो FL होगा, सेकंड में DR होगा, थर्ड वन में SM होगा, नेक्स्ट वन में STR, और लास्ट हमारे पास जो ब्लॉक है उसमें WH होगा। अब मैं आपको स्लाइड बताती हूँ और आप इसकी हेल्प से अपनी बुक पे एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। नाउ सी, फर्स्ट इज FL। नाउ सी FLASH फ्लैश, FLASH फ्लैश। इनिशियल लेटर इसके टू लेटर्स क्या हैं FL। देन फ्लैग, FLAG फ्लैग। और फ्लो ऑलरेडी बुक पे हमारे पास गिवन था, ठीक है, FLOW फ्लो, ये हमें एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन थी बुक पे। द नेक्स्ट जो हमारे पास एम्प्टी टू ब्लॉक्स है उसमें हम लिख रहे हैं फ्लावर एंड देन फिल, राइट, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ DR, DRAGON ड्रैगन, DRAGON ड्रैगन। Then drop, DROP drop, then drop, DRAW drop, then drain, DRAIN drain, then drink, DRINK drink, drink, then SM, SMART smart, SMALL small, then SMOKE smoke, then SMOOTH smooth, then smell, SMELL smell, then STR, STREET street, STREET street, then STRONG strong, then STRAW straw, then STRAP strap, then string, string। लास्ट है हमारे पास WH, WHICH which, then whale, WHALE whale, मछली को बोलते हैं। then wheat, WHEAT wheat, गंदम, जिससे हम आटा बनता है, रोटी बनती है, wheat। then wheel, WHEEL wheel, पहिया, टायर जो होता है पहिया, WHEEL wheel। लास्ट वर्ड है WHITE white। अच्छा बॉयज़, लेट मी मेक यू क्लियर कि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे शो किया आप यही लिखो। आप डिक्शनरी ओपन करो, आपको इन लेटर से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स मिलते हैं आप वो लिख सकते हो। हम आपको बाउंड नहीं करते कि जो हमने आपको बताए हैं आप यही लिखें, इट्स नॉट नेसेसरी, यू कैन राइट एनी वर्ड। लेकिन बस ये ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके इनिशियल लेटर FL हों, सेकंड के DR हों, थर्ड के SM हों, फोर्थ के STR हों और लास्ट में WH हों। बस इसको अपने माइंड में रखना है। आप कोई से भी वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। और आपके ऊपर ये भी कंपल्शन नहीं है कि आपने नाउन लिखने हैं और आपने वर्ब कुछ भी किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड आप लिख सकते हो, राइट।
आप नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी आप लिख सकते हो, एडवर्ब, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, today's homework. Write meanings of the given words. Word number 1 is shown, then stone age, then fables, then excited and then gathered. आपने इस होमवर्क को अपनी नीट नोटबुक में करना है, ठीक है। आपकी जो नीट नोटबुक है ना इंग्लिश की, आपने इस पर इन वर्ड्स को बहुत नीटली लिखना है और फिर आपने लाइन ड्रॉ करनी है और आपने इन वर्ड्स को लिखने के बाद इनके मीनिंग्स लिखने हैं सेंट्रल लाइन ड्रॉ करने के बाद। ओरल में आप क्या याद करना है, लर्न एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए हमारी किस पे बेस्ड थी, वर्ड्स ऑपोजिट पे, और वो कौन सा पेज था, पेज 37। आपके पेज 37 से आपने एक्सरसाइज याद करनी है। सो दिस वाज योर lecture, and boys, if you have any question you can ask when you come to school. जब आप स्कूल आओगे तो आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो you can ask from us. So till next lecture, Allah Hafiz, stay home, stay healthy and stay safe.